ہاں ولید بن عقبہ، اسی کا بیٹا ولید بن عقبہ جس کو کوفے کا گورنر لگایا، مسلم شریف میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ صحابہ خلاف ہو گئے. رکیے دیکھیے، نماز پی کے شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا مسلم میں. کہاں مسلم میں؟ ایسے بیوقوف بناتا ہے یہ بندہ، جھوٹ بولتا ہے. صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے کہ ان پہ شراب کا الزام لگا، کوئی پروف نہیں کسی کے پاس کہ شراب پیا، یعنی یہ شراب پیا، یہ محض الزام ہے. صحیح مسلم میں کہ الزام، اس الزام کو اس شخص نے کیا بنا دیا، اس کو حقیقت بنا دیا، اور یہ ان کا عادت بنا دیا کہ شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے. اور مودودی نے یہی کہا کہ وہ شرابی تھے. مودودی نے لکھا نا خلافت و ملوکیت میں، جا کے دیکھیں، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کا، یہ جو بول رہا ہے نا ویڈیو میں، اس کا بہت ہی ڈیٹیل میں تفصیل میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے خلافت و ملوکیت میں. جس کو ڈیٹیل چاہیے جا کے پڑھیں، بہت تفصیل سے جواب دیا ہے. تو یہ عادی یعنی شرابی بنا رہا ہے کہ وہ شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے. مودودی نے لکھا کہ وہ بعد میں پتا چلا وہ تو شرابی ہے. استغفر اللہ. بھائی ایک لائف میں ایک بار الزام لگا شراب کا، ثابت بھی نہیں ہوا، پھر بھی ان کو یہ لوگ شرابی بنائے جا رہے ہیں. آگے چلا یہ ویڈیو. عثمان کے اصلی اسباب صحیح بخاری، جعلی اسباب نہیں. اس کا باپ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ اسباب ہیں معاذ اللہ جس کی وجہ سے عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو ولید پر جو الزام لگا نا کہ شراب پی کے نماز پڑھا رہا، ولید نے کچھ لوگوں کی مرمت کی تھی وہاں پہ کوفہ میں. بدماش لوگ تھے تو بدماشوں کو ان کو سبق سکھایا. اب وہ لوگ ولید کے پیچھے پڑ گئے، اس پہ آئے دن کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے تھے. اب ایک دن جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا پی لیا، ہو سکتا نبیذ پیا ہو، کیا پیا ہو، لیکن بہرحال ان لوگوں نے الزام لگا دیا نہیں وہ شراب پی لیا یہ. اب یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ مقدمہ آیا، اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا یہ کہ انہوں نے کسی نہ کسی نے قے کیا، اور صحیح مسلم میں یہ کسی نے دعویٰ کیا شراب پیا. لیکن جو گواہی ہوتی ہے نا، معتبر گواہی، جس کی بنیاد پر باقاعدہ کوئی الزام ثابت ہو، وہ گواہی کوئی پیش نہیں کر سکا. اس کے باوجود بھی اچھا ایک یہ جو اس نے کہا نا کہ عثمان، اچھا اس کو چلیے صحیح بخاری میں آتا ہے یہ عقبہ بن ابی معیط میں. یہ لیڈر تھا کفار کا. ہاں ولید بن عقبہ، اسی کا بیٹا ولید بن عقبہ جس کو کوفے کا گورنر لگایا، مسلم شریف میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ صحابہ خلاف ہو گئے. شہادت عثمان کے اصلی اسباب صحیح بخاری، جعلی اسباب نہیں. اس کا باپ عقبہ بن ابی معیط. دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شراب پیتے، شرابی نہیں تھے نا، شراب پیتے تھے. ان پہ پوری لائف میں ایک بار بھی شراب پینا ثابت نہیں، یہ محض ان پر الزام ہے. اور یہ کہہ رہا ہے بندہ کہ اس کی وجہ سے لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، یعنی ان کو شہید بھی کر ڈالا. جبکہ معاملہ کیا ہے، ایک تو بلا وجہ کا الزام لگا، اس کے باوجود بھی یہ جب معاملہ پہنچا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیانات سنے. اب میں ایک منٹ میں وہ روایت بھی نکال دیتا ہوں، صحیح مسلم کی جو روایت ہے جہاں سے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ صحیح مسلم میں ہے یہ. ایک منٹ شیخ نمبر بتائیں، میں بھی کھول دیتا ہوں. ہاں ایک بس دو سیکنڈ دیجیے. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1707. اچھا، کوفہ والوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی بہت معروف تھی کہ وہ ہر قاضی کو جو ہے نا اس پہ اسی طرح کے الزامات لگاتے تھے. یعنی حضرت عمر کے دور میں کس پہ؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص پہ الزام لگا دیے تھے کہ ان کو نماز نہیں پڑھانی آتی ہے. اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سعد ابن ابی وقاص پہ الزام لگایا تھا نا. تو کوفہ کے لوگ اپنی شرارتوں میں معروف تھے اور اس طرح کے الزامات لگاتے رہتے تھے. تو حضرت سعد پہ انہوں نے جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ہاں، ان پر یہ الزام لگا دیا کہ ان کو نماز نہیں پڑھانی آتی ہے. تو ان سے کیا بعید ہے کہ وہ ایک بار اپنے جو ہے وہ ولید ابن عقبہ پہ الزام لگا دے کہ ان کو شراب پی کر کے نماز پڑھانا. الزام لگا. دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، الزام لگایا، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے صحابہ خلاف ہے. حالانکہ جب یہ کیس پہنچا نا عثمان بن عفان کے پاس، آپ تو روایت دیکھ لیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں کیا ہوا، جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو شہید علیہ رجلان، دو لوگوں نے گواہی دی. احدہما، تو اس میں سے ایک نے کیا کہا، اسکرین پہ لائیے نا حدیث. ہاں وہ 1707 ہے. زید بھائی اس کو لے آئیں، کوئی لے آئے اس کو. جی شیخ میں ٹرائی کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور مل رہی ہے.
तो दो लोगों ने गवाही दिया। देखिए, एक ने दावा किया कि शराब पिया, कोई एविडेंस नहीं, ये नहीं कहा कि मैंने देखा है, इस तरह की गवाही नहीं मानी जाती है भाई। उस शख्स ने कहा कि शराब पिया है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये नहीं कहा कि मैंने देखा। दूसरे बंदे ने क्या, दूसरे बंदे ने कहा उन्होंने तय किया, तय करने को सबूत बना लिया। कम से कम दो लोग होने चाहिए, लेकिन दो गवाह नहीं है। अगर हम मान भी लें कि एक बंदा दावा कर रहा है तो दूसरा नहीं है, दूसरा शख्स नहीं है, तो इसमें कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उस्मान बिन अफ्फान ने फैसला सादिर कर दिया, हद लगाओ। ये उस्मान बिन अफ्फान का कितना बड़ा दिल था जब उन्होंने देखा कि भाई चलो, इस पे बाद रातों में आता है कि उसने कहा कि अच्छा, वो इनकार कर रहा भी, वलीद इनकारी भी, इकबाली मुजरिम नहीं है, वो इनकारी है, वो कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो बाद बातों में तो उस्मान बिन अफ्फान ने कहा भाई सब्र करो, ये लोग गवाही दे रहे हैं, ऐसा करें, थोड़ा सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, ये मसला है। तो उसके बाद हद जारी किया। अच्छा, जब हद जारी करने का फैसला किया, देखिए सही मुस्लिम की रवायत है, हद जारी करने का जब फैसला किया तो क्या कहा कि उस्मान बिन अफ्फान ने कहा कि या अली कुम फअजलिदहु, कहा कि ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप उठें और इसको हद लगाएं। सुभान अल्लाह, ये इंसाफ देखें आप। यानी उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला ने, एक तो शहादत का जो मेयार था वो पूरा नहीं है, साबित भी नहीं हो रहा, फिर भी उस्मान बिन अफ्फान ने कि चलो भाई ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन चलो उसके बावजूद भी हम इसको सजा दे देते हैं। कहा कि सजा दे दो, और सजा देने के लिए किसको कहा? उन अहले बैत को जिनको ये अली मिर्जा जैसे लोग जो है बनु उमैया का अपोजिशन बना के पेश करते, कि उनके मुखालिफिन थे। तो उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला ने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कहा कि मारो, किसको कहा? अली रज़ी अल्लाह तआला का। कहा आप उठे और सजा दें, आप उठिए और हद जारी कीजिए। अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हसन रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि हसन आपके, हसन ने भी इनकार कर दिया। हसन रज़ी अल्लाह तआला ने भी, भाई उनका जुमला क्या, उसको भी तोड़ मोड़ के पेश करता है। देखिए रवायत में जुमला क्या है। हसन रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि वल्लिहार रहा मन तवल्ला कार रहा। बड़ी प्यारी बात है, इस पर मजा आ जाए, इस पर मतलब मेरा दिल कहता है कभी कभी घंटों बोलो इस जुमले पे, इतना बेहतरीन। पहले उसकी क्लिप चला दे जैद भाई, उसने बड़ा मतलब तहरीफ की है तर्जमे में। अच्छा, वो क्या मिर्जा अली इंजीनियर ने जो तर्जमा किया ना, वो जैद भाई वो क्लिप चलाइए ना, चलाइए देख। वो बहुत तारीफ करके ना, वो बहुत अजीब तरह से काबे में नमाज पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे। नहीं ये नहीं है वो ना, उकबा बिन अबी मुईत ने ला के, ये दूसरी क्लिप आ गई जैद भाई। नहीं ये बाय मिस्टेक आ गई, एक मिनट। हाँ, इससे ये इसने बाकायदा वो जो वल्ली हा रहा मंतवल्ली का रहा ना, उसका तर्जमा उसने तर्जमा गलत नहीं किया कि वो गलत बात हजरत हसन की तरफ मंसूब कर दी तहरीफ करके। बता दीजिए इसको, क्या इसमें? अरे वो क्या कुछ बोला है पता नहीं कैसा, कि उसकी खीर भी वही खाए, कैसा कुछ बोला है पता नहीं क्या, अजीब सा तर्जमा किया उसने। उसकी कड़वी भी वही चखे जो उसकी खीर खाता है, ऐसा कुछ तर्जमा। इसी तरह से मुसलमान रियाया और साहबे कराम हजरत उस्मान के खिलाफ हुए थे। बेसिकली इसकी गलत पॉलिसीज थी, ये वजीर खास बना हुआ था ना उस वक्त। तो इस पे आप मेरी एक वीडियो देख लें, हजरत उस्मान शहीद की। नहीं ये नहीं, कौन सी क्लिप थी जो आप देखना चाह रहे हैं शेख? इसके बाद वाली ना जो अभी चल रही थी। नहीं वो तर्जमा इसने, ये इसको नहीं तो पकड़ना ही उसको, इसने जो हजरत हसन की तरफ मंसूब गर्दन पे रखती जब सजदे की हालत में, वहां पे नहीं ये क्लिप नहीं। माजरत वो शराब पीता था, जिसमें उसने बोला है ना कि शराब पीता था। अच्छा, ये वलीद बिन उकबा क्या हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम के कत्ल का मामला, तो ये बात तो ठीक है कि उनके खिलाफ जो एक किया है, नहीं सही है, शेख साहबान का कहना भी सही है कि वो ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो अल्लाह ताला ने उन पे एतमाद किया, 5 साल तक जिम्मेदार रहे हैं। बेशक गज़वात में हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दो अहम लोगों में से एक इनको मुंतखब किया था। तो किसी के मजमूई कैरेक्टर को देख करके इतने दूरअंदेशी अगर हजरत बकर सिद्दीक की देखिए, हजरत उमर फारूक की देखिए, तो पिछले खुलफा के यहाँ जो लोग जिम्मेदार थे, जिनको तजर्बा था, वही वलीद बिन उकबा को गालिबन हजरत अबू बकर के दौर में जो नया इस्लाम कबूल करने वाले लोग थे, उनकी तरबियत पर तय किया गया था। चलाइए जब भी शायद यही क्लिप है जी, आगे क्लिप चलाइए। बाद में हजरत उस्मान भी तुसी मरवाया है सरकार, हाँ बनु उमैया नहीं मरवाया।
अब बाद में फिर खून आलूद जो है ना कुर्ता जाके नहीं ये नहीं है जावेद दूसरा बशीर है। शेख किफायत आप तशरीह कर दीजिए, आप तशरीह कर दीजिए उसकी। ये जो मुहिम खड़ी हुई कातलीन ये बोला है ना कि हजरत कौन है भाई, इसने ये बोला है, उस वल्ली हारहा का तर्जमा ये किया है कि जो इसकी मीठी चखता है वही इसकी कड़वी भी चखे, इस तरह का कोई तर्जमा किया है। मतलब ये कि ये आपने इसको खलीफा बनाया है, गवर्नर मुकर्रर किया है, तो आप भी चखें, हम क्यों जाए चखने के लिए। वो बहुत लंबी तफसील है, अभी वो जैद भाई तलाश करके डालेंगे इंशाल्लाह। आप तशरीह कर दीजिए। बहुत ही तारीखी जुमला का असल में आज मैं कभी कभी दिल करता है कि आज जो दीनी अदारे हैं हमारे या मसाजिद हैं, वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, उन लोगों को भी ये जुमला सामने रखना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बहुत मैं असल तशरीह इसके सामने रखता हूँ। असल तशरीह है ना कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि भाई आप खलीफा हैं, तो जो खलीफे हैं तो खिलाफत एक अच्छी चीज है ना, तो खिलाफत एक अच्छी चीज है। जब आप खलीफा हैं, हुक्म सादिर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये खिलाफत एक अच्छी चीज है, ये आपके साथ है, आपको खलीफा बनाया गया है। तो जिस तरह से ये खिलाफत की कुर्सी आपके पास है, अगर यहाँ पे कोई नाखुशगवार बात आती है तो वो हम क्यों करें, वो भी आप कीजिए, वो कोई और करे। बल्कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कतराना इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि ये यानी ये जो उन्होंने कहा ना कि वल्ले हार रहा, क्या जुमला देखिए, वल्ले हार रहा मन तवल्ला कार रहा, यानी इसके अंदर यानी इस खिलाफत में यानी जो इमारत है, इमारत लेते हुए अगर कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो इसमें अगर कोई नेगेटिव चीज आती है तो वो भी आप कीजिए, हम क्यों करें उसको। ये जुमला तो इस तरह भी इशारा करता ना कि ये जो इसको हद जारी करने का जो मसला था, हसन रजी अल्लाह तआला नहीं मुतमईन थे, उनका दिल नहीं कर रहा था कि हम जो है, पता नहीं देखिए किस अंदाज से केस आया था, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं है, तो हसन रजी अल्लाह तआला ने अपने आप को बचा लिया कि भाई इमारत एक अच्छी चीज आपके पास, अब इसके साथ ये नेगेटिव चीज आ रही है, पता नहीं क्या क्या केस हो रहा है, इसमें हम क्यों जाए मारने के लिए, भाई या आप खुद कीजिए, किसी और को लगाइए, हम नहीं मारेंगे। तो हसन रजी अल्लाह तआला ने इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं हद जारी करेंगे। उसके बाद में इस रवायत में क्या है आगे कहा कि या अब्दुल्ला इब्न जाफर, ए अब्दुल्ला इब्न जाफर आप उठिए और जो है आप हज जारी कीजिए। तो फजलदहु अब्दुल्ला बिन जाफर, ये भी अहले बैत में से अब्दुल्ला बिन जाफर उठे और उन्होंने हज जारी की, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु गिन रहे थे। बहरहाल मैं यहाँ जो हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की इंसाफ का आप ये आलम देखें। ये कहते हैं ना इस वाक़ये से लोग खिलाफ हो, क्यों खिलाफ हो गए? अगर सजा नहीं देते, हिमायत करते, उनको सर पे बिठा लेते, तब आप कहते हैं ना कि साहबा खिलाफ हो गए। लेकिन यहाँ उस्मान बिन अफ़्फ़ान बगैर जुर्म साबित हुए उसको जो है सजा का हुक्म दे रहे हैं, और सजा देने की जिम्मेदारी अहले बैत को दे रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई शुबह की बात न रह जाए, किसी तरह की कोई मसला न रह जाए। इतना बेहतरीन और इतना बड़ा इंसाफ करने वाले के बाद आप कहते हैं कि नहीं वो जो साहबा खिलाफ हो गए। अरे भाई दूसरी बात में आता है कि उनको माजूल भी कर दिया। अब इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है, मुझे बताइए। इससे बड़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान और क्या कर सकते थे जो नहीं किया उन्होंने? एक बंदे पे इल्जाम लगा रहे हैं अहले कूफा, ये कूफी दरिंदे इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम का सबूत भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी खलीफे वक्त उनके तानो तशरीह से बचने के लिए सजा का हुक्म सादिर कर रहा, और खलीफे वक्त सजा देने के लिए अहले बैत को खड़ा कर रहा कि आप सजा दे, और अहले बैत ने कोड़े मारे। अब क्या उनको माजूल कर दिया गया? अब क्या बचा भैया? अब आखिर कौन से इंसाफ की तवक्को है? दुनिया की कौन सी अदालत है जिससे बेहतर इंसाफ दे सकती है? पूरी दुनिया का कौन सा जज है जो इससे बेहतर फैसला कर सकता है, इससे बेहतर जो है इंसाफ कर सकता है? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो फजीलत साबित होती है इससे, उनका कितना बड़ा दिल था ये साबित होता है कि उन्होंने केस साबित नहीं हुआ, जुर्म साबित नहीं हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने, ताकि कोई तानो तशनी का बहाना न रहे, उस बंदे को समझाया कि भैया सब्र कर लो, दो लोग आके गवाह दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए आप ये सब्र कर लो ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। सही क्या है गलत क्या वो छोड़ एक तरफ, लेकिन इनका मुंह बंद करने के लिए सजा भुगत लो, तैयार हो जाओ, अल्लाह ताला क्या हिसाब होगा, अल्लाह ताला के गवाह पकड़े जाएंगे अगर उन्होंने झूठ बोला है। तो ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सजा भी दे दी। अब क्या रह गया भैया? अब क्या चाहिए तुमको? अब क्या शिकायत है? अब बताइए कि अगर कहीं पे भी कोई हाकिम किसी पे इल्जाम लगा, उसको सजा दे दी गई, और सजा देने वाले भी अहले बैत में से, फिर भी कोई वजह रह जाती है, और ये बंदा कहता नहीं इसकी वजह से जो है सहाबा खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए? अगर कोई हिमायत किया होता उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने, सजा न दिलवाई होती, या अहले बैत के बजाय खुद खड़े होकर दो डंडा मार दिया होता ऐसे हल्का फुल्का, ताकि कोई इल्जाम लगाता कि नहीं तेज नहीं मारा है, भाई ये भी इल्जाम नहीं आने दिया कि हम नहीं मारेंगे ताकि कोई ये ना समझे कि हमने हल्का फुल्का मार दिया है। अहले बैत से कहा कि आप मारो, फिर क्या ऐसी कमी रह गई थी कि आप कहते हो कि सहाबा किराम जो है खिलाफ हो गए? तो बहरहाल ये वाकया जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी जो है उन्होंने एक्शन लिया। और ये कोई अच्छा
कुछ लोगों ने क्या कहते हैं, जब हम ये बात कहते हैं ना कि जुर्म साबित नहीं था फिर भी उन्होंने सजा दे दी, तो कुछ लोग मौजू बदल देते, कहते हैं नहीं तो फिर तो गलत हो गया ना, जुर्म साबित नहीं था तो क्यों सजा दिया। अरे भाई, इससे पहले सही बुखारी की रवायत है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के दौर में साद रज़ी अल्लाह तआला जो जन्नती साहबी हैं, कूफा में इमाम थे, उन बदमाशों ने जो है इल्जाम लगा दिया कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। भाई शर्म नहीं आनी चाहिए, जन्नती साहबी के बारे में कह दिया हमको नमाज पढ़ाना नहीं आता है। उनकी औकात देखिए आप, एक अजीम शान साहबी के बारे में कहते हैं कि उनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंक्वायरी की, जुर्म साबित नहीं हुआ, उसके बावजूद भी माजूल कर दिया, उनको हटा दिया, उनको हटा दिया। कोई माइकल नहीं बोल सकता कि उनका जुर्म साबित था ना, उनकी तरफ जो तहमत मंसूब की थी नहीं साबित हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अहले कूफा का मुंह बंद करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने उनको माजूल कर दिया। तो क्या यहां भी हिम्मत है किसी के कहने की? या तो आदमी क्या किसी को ये हिम्मत है कि साद रज़ी अल्लाह तआला पर जो इल्जाम लगाया था वो सही था? क्या कोई हिम्मत कर सकता है कहने की? अगर ये हिम्मत नहीं कर सकता तो फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्यों माजूल कर दिया? यकीनन मसलहत के तीर मंजूर कर दिया, देखा कि जुर्म नहीं, लेकिन फिर भी हटा दिया उनको। तो ऐसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह, तो जो हाकिम होता है, दूरअंदेश होता है, हिकमत मसलहत देख के डिसीजन लेता है कि गरचे उनकी गलती नहीं, लेकिन चलो उनको हटा देते हैं, माजूल कर देते हैं, या कोई सजा बनती है दे देते हैं ताकि लोगों के मुंह बंद हों। तो इस तरह से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने सजा दे दी। अब क्या रह गया? और अब किस पहलू से, अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते, चलो हम मान लेते हैं कि वलीद ने शराब पी थी, ये एक ही वाकया ना, ऐसा तो नहीं कि वो शराबी था। मान लिया कि चलो गलती हो गई, शराब पी लिया उसने, और तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान जनों का रिश्तेदार था, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भी आता है ये शख्स, दूर से आप पूरा नसब देखेंगे तो। लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि अच्छा उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जो रिश्तेदार, ऐसा नहीं क्योंकि सगा भाई है, भाई माँ की तरफ से रिश्तेदार है, जो कमजोर रिश्तेदार होता है, सगा भाई अगर रहे ना विरासत में तो माँ शरीक भाई को महजूब कर देता हूँ, तो उतना मतलब मजबूत रिश्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लिंक लेके बिला वजह कहते हैं नहीं अपना भाई था इसलिए जो ये सपोर्ट किया। अरे क्या सपोर्ट किया भाई, सजा दिलवा दिया, माजूल कर दिया, और क्या उम्मीद, और वो भी सजा दूसरों से दिलवाया, अहले बैत से दिलवाया, अब क्या कर सकता है आदमी। लेकिन चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसने शराब पिया, शराब पीने के बाद हद जारी की गई। अगर हम ये मान भी लें कि शराब पिया और सजा दे दी, तो भी बताइए इस पे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु का क्या कसूर है, उनकी क्या गलती है? किसी भी के घर का कोई करीबी शख्स या कोई भी आमिल, कोई भी कोई गलती कर दे किसी वजह से, तो आप उस्मान बिन अफ़्फ़ान का क्या कसूर है? उन्होंने सजा ना दिया तो बोलते सजा भी दे दिया, अब उनकी क्या गलती है? अच्छा इस तरह का एक वाकया मैं आपको दिखा दूं, शराब पीने का, सही सनद के साथ है वो, और उसमें यह साबित है कि जो है उसने जो है शराब पिया, कई लोगों ने इसकी गवाही दी। ये इस रवायत को कई लोगों ने नकल किया है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी नकल किया है अपनी किताब अत-तारीख़ुल औसत में, और कई लोगों ने नकल किया। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में इसकी सनद को सही भी करार दिया। वो वाकया क्या है जरा सुनिए। वो वाकया ये है कि उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तामला कुदामा इब्न मज़ऊन अलल बहरैन, बहरैन पे कुदामा बिन मज़ऊन को आमिल बनाया। वकाना शहीदा बदरन, और ये बद्र में शरीक थे, यानी बदरी साहबी, बद्र में ये शरीक थे, इनको आमिल बनाया, कहाँ का? बहरैन का आमिल बनाया। ये कौन है? ये किनके आमिल हैं? ये खलीफे दोम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आमिल हैं, इनको बहरैन का जो है आमिल बनाया। उसके बाद क्या हुआ? और अच्छा ये कौन थे? देखिए ये सिर्फ उमर रज़ी के आमिल नहीं थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उमर रज़ी अल्लाह के बहनवी भी थे ये, क्योंकि इसी रवायत में लिखा हुआ है कि वह हुआ खालू अब्दुल्लाह इब्न उमर व हफ्सा फ़क़दिमल जारूद व हुवा सईद अब्दुल कैस। ऐसा इसमें क्या है कि फ़क़ाल, आगे रवायत में है फ़क़ाल इन्न कुदामा इब्न मज़ून शरिबा फ़सकिरा फ़अक़ामत इमरातुहु हिंद बिनतुल वलीद अला ज़ौजिहा शादा। अच्छा ये यहाँ पे मुख्तसर रवायत है, लेकिन दूसरी रवायतों में इसकी डिटेल आई है। मुस्तद इब्न फारूक, मुस्तद फारूक जो रवायत है, जो किताब है इमाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह की रवायतें जहाँ एक जा की गई इकट्ठा, उसमें कई रवायतें मौजूद हैं। हाशिया में भी मुहक्किक ने भी कुछ रवायतें दर्ज की हैं, उसमें पूरी तफसील मौजूद है कि उनकी बीवी ने भी गवाही दी कि हाँ ये शराब पिए थे, कई लोगों ने कहा कि शराब पिए थे। उसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंक्वायरी की और फिर हुक्म दे दिया कि इन पर कोड़े लगाए गए, चनाचे में कोड़े लगाए गए।
اب بتائیے کیا اسی طرح کا واقعہ جو عثمان بن عفان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو، اسی طرح کا واقعہ تو خود خلیفہ دوم کے بارے میں پیش آ چکا. خلیفہ دوم کے رشتہ دار نے شراب پی اور خلیفہ دوم تک بات پر انہوں نے کوڑے لگوا دیے. تو کیا کوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا ہوا؟ کسی صحابی نے کوئی بغاوت کی کہ نہیں آپ کے عامل نے شراب پی لیا، آپ نے حد بھی جاری کر دیا تو بھی آپ ہٹو خلافت چھوڑو، آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی؟ کسی نے کوئی کھڑا ہوا، کوئی احتجاج ہوا، کوئی پروٹیسٹ ہوا؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی ہنگامہ ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ سیم واقعہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہی واقعہ تو عہد فاروقی میں بھی پیش آ چکا. شراب پینے والا بھی رشتہ دار عمر رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے حد بھی جاری کر دی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. تو یہ وجہ، اگر یہ وجہ ہوتی نا ان کو شہید کرنے کی عثمان بن عفان کی، تو پھر یہ وجہ ہوتی تو پھر عمر خلیفہ دوم کے بھی خلاف سب ہو جاتے نا، کیونکہ سیم واقعہ وہاں بھی پیش آ چکا ہے. پتہ چلا کہ یہ وجہ نہیں ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی، یہ وجہ نہیں ہے، وہ تو دوسری وجہ. ان کے عامل کو پریشان کیا گیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا. وہ جو کوفی تھے، جو منافق تھے، جو سبائی تھے، یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، صحابہ کرام سے جلتے تھے، عثمان میں یہ تخت خلافت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شہید کیا. یہ آتنک مچانا یہ جو گورنر تھے کفایت بھائی، حضرت یعنی ولید بن عقبہ، تو کہیں ایک ہی نہیں، مطلب اتنے فتین لوگ تھے یہ کہ 4 5 گورنر وہاں بدلے گئے بھائی، بدلے گئے. صحیح بات. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعین کردہ گورنر موجود تھے، ان کے خلاف ان لوگوں نے سازش فتنہ کیا. ان کی جگہ پر جو ہے سعد بن ابی وقاص کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیا، اور ان پر بھی کلیم لگایا گیا کہ انہوں نے تو دیکھیے ان کو ہٹا کر کے سعد بن ابی وقاص کو لگا دیا، جبکہ سعد بن ابی وقاص بہت ماہر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کو جو ہے فٹ کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی کو یہ کہا تھا، ایک منٹ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا کہ سعد بن ابی وقاص سے ضرور کام لینا ہے. اور یہ فاتح کسریٰ تھے، بہت ماہر آدمی تھے، اور وہ ایریا بھی وہی آتا تھا، تو اس ایریا میں رہ کر کے یہ بہترین طریقے سے کر سکتے تھے. لیکن ان کے خلاف بھی سازش ہوئی بھائی، خالی یہی تھوڑی معزول ہوئی، پھر ان کے خلاف ایک خوفیوں نے شکایت، مطلب یہ کسی سے مطمئن نہیں ہوتے تھے نا. آج بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے مسجد مدرسہ سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں زیادہ فتنہ ہوتا ہے وہاں لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ کا کوفہ ہے. تو بہرحال وہ جو کوفہ تھا فتنوں کی آماز گاہ تھا، تو وہاں پہ سعد بن ابی وقاص سے بھی مطمئن نہیں ہوئے، تب ولید بن عقبہ کو متعین کیا گیا. اور ولید بن عقبہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، عہد صدیقی میں کام کر چکے تھے، عہد فاروقی میں کام کر چکے تھے سالوں تک، اور دونوں خلفاء نے ان پہ اعتماد کیا ہوا تھا، ان کے دیانت پہ اعتماد تھا، ان کی صلاحیت پہ اعتماد تھا. تو ان کی صلاحیت اور ان کی دیانت کے پیش نظر ان کو متعین کیا گیا. پھر ابھی آپ کفایت بھائی نے پوری تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کے خلاف وہ سازش کرتے رہے، پھر کوئی کلیم لے کے آئے نہیں قبول کیا گیا، پھر کوئی الزام لے کے آئے نہیں قبول کیا گیا، پھر اب کی بار شراب نوشی کا الزام لے کے آئے، اور انگوٹھی نکال کے پتہ نہیں کیسے لے آئے تھے، وہ کیسے انگوٹھی کس جگاڑ سے ان کو مل گیا. اب وہ انگوٹھی لے کے آ گئے، کہا دیکھیے اس حالت میں تھے کہ انگوٹھی نکالنے کا ہم کو موقع مل گیا. اس طرح کر کے کچھ نہ کچھ کر کے ان کو معزول کرایا اور ان کو سزا ہوئی. پھر اس کے بعد میں جو ہے جو ہے سعید بن عاص بھی وہاں گورنر ہونے کے لیے آئے، ان کو بھی پریشان کیا ان لوگوں نے. پھر ابو موسیٰ اشعری ہوئے. یہ سارے گورنروں کا تبادلہ ہوا. اس میں تو کلیم بنتا ہے کوفیوں پر، ان پر جو ہے جرح کرنی چاہیے اور ان کی برائی بیان کرنی چاہیے، لیکن جن کی برائی بیان کرنی ہے ان کی برائی نہیں بیان کر کے جبکہ عثمان غنی پر کلیم رکھا جا رہا ہے، جو ہے ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے، اور یا تو آپ کے گورنروں پر ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے. اچھا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ایک بھائی بیک سٹیج جوائن ہوئے تھے جنہوں نے اپنا نام میں لکھا تھا میں علی مرزا کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ہم لوگ اوپننگ کمنٹ میں شیخ سرفراز بھی ایک ویڈیو کا انالیسس دینے والے ہیں، لیکن درمیان میں آپ کو لے لیں گے. آپ آئیے واپس، ہاں واپس آئیے جنہوں نے اپنا نام یہ رکھا تھا. میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ ایک امیج بھیجی ہے. زید بھائی اس کو کمپلیٹ کر لینا اس ویڈیو کو. میں نے آپ کو وہ امیج بھیجی ہے مرزا علی انجینئر کے کتاب سے واٹس ایپ پہ، وہ آپ وہی شیئر کر دیں. اس نے مجھے ترجمے میں خیانت کی، اصل میں وہ دکھانا چاہ رہا تھا. آپ کو دیکھیے میں نے وہ گروپ میں بھیجا ہے، میں نے آپ اس کو شیئر کر دیا. جی ابھی میں نے بھیجا. یہ لیجیے، یہ دیکھیے شیخ اس نے کیا ترجمہ کیا ہے، تھوڑا بڑا کیجیے.
یہ اس نے ترجمہ کیا ہے کہ جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا ہے یعنی سیدنا عثمان اس کی تلخی بھی برداشت کریں. نہیں یہ مطلب یہ ایک دم تحریف ہے. بکواس خرافات. یہ نالائق کہاں سے ترجمہ لے کے آ گیا اس میں؟ تو وہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ ایکسپلین کریے, پھر سے ایکسپلین کریے عربک کے ساتھ, آپ جو ایکسپلین کریں. جی یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. سب سے واضح بات تو یہ ہے کہ اس میں ولی ہا رہا میں ہا کا جو ضمیر ہے وہ تو مؤنث ضمیر ہے, تو اس شخص کی طرف کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہا رہو تھوڑی ہے, ہا رہا ہے تو مؤنث کی ضمیر ہے, تو وہ شخص کی طرف کیسے لوٹے گی؟ وہ مذکر ضمیر ہے نا, تو وہ شخص کی طرف کیسے لوٹے گی؟ میرے خیال سے عوام کے لیے تھوڑا اور آسان طریقے سے ایکسپلین کریں. اصل میں وہ جو شیخ نے جو عبادت پڑھی تھی نا ابھی, جس کی تشریح وہ کر رہے تھے ولی ہا رہا, تو اس میں ہا رہا میں جو مطلب ہار مطلب جو ہا کی ضمیر ہے آخر میں ہا رہا, تو عربی میں ہو کی ضمیر ہوتی ہے جو مذکر کی طرف یعنی میل کی طرف لوٹتی ہے, اور ہا یعنی مؤنث کی ضمیر ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے تو مذکر ہو گیا نا, تو اگر اس شخص کی طرف بولنا ہوتا تو ہا رہو بولتے, ہا رہا نہیں بولتے. تو وہاں تو ہا رہا کا لفظ ہے, تو ضمیر مؤنث کی ہے, اور یہ بندہ ترجمہ کر رہا ہے اس شخص کا مزہ وہ لے, تو وہ ترجمہ اس نے جان بوجھ کر کے خیانت کی ہے ترجمے میں. چلیے ایک وہ خلافت کی طرف اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ خلافت کی طرف اشارہ ہے, نہ کہ ولید ابن عقبہ کی طرف اشارہ نہیں, وہ خلافت کی طرف اشارہ ہے. وہ خلافت کی طرف زمین جا رہی ہے, عمارت کی طرف. وہاں پہ مینشن نہیں ہے, پوشیدہ ہے وہ, یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو حکومت کی باغ ڈور ہے یہ آپ نے سنبھالی ہے, تو یہ جس طرح سے آپ نے سنبھالی ہے, تو اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو بھی آپ سنبھالیے نا, ہم کیوں جائیں سزا دینے کے لیے؟ آپ یعنی حضرت حسن نے جو کہا, حضرت حسن نے یہ کہا کہ خلافت میں جو فائدے ہیں, کیونکہ آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو جو اس طرح کی مشکل فیصلے ہیں اس کا بھی ذمہ دار آپ کو بننا چاہیے, وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں. اور اس نے ترجمہ یہ کر دیا کہ اس آدمی سے فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں تو اس کا نقصان بھی آپ برداشت کریں. تو وہ آدمی کی طرف ضمیر لوٹ ہی نہیں رہی ہے, شخص کی طرف نہیں ضمیر لوٹ رہی ہے, بلکہ وہ خلافت کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. پر اگر وہ خلافت مان لے گا, میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں, شاید اس سے تھوڑا سا واضح ہو جائے. بہت سالوں پہلے کی بات ہے, میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا, تو ایک صاحب ذمہ دار تھے, بہت اچھے ذمہ دار تھے وہ. تو وہ ہمیشہ سب کا نوٹس لکھتے تھے, مطلب نکالنے, مطلب کسی کے بارے میں فرمان صادر کرتے تھے, جو بھی ہوتا تھا ان کو عہدہ دینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, بہت خوبصورت فیصلے کرتے تھے, بہت خوبصورت فیصلے کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک ایسے شخص, ایک مجرم میں پکڑا گیا, تو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کو نکالو. تو وہ ان کا بڑا قریبی تھا بندہ, تو جب کمیٹی نے کہا نکالو نا, تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کا ہمیشہ کا کام ہے, آپ لکھ دیجیے نوٹس. انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ کفایت آپ لکھ دیجیے. میں نے ان سے کہا ولے ہارا, میں نے کہا بھائی ابھی تک آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, آج اس بندے کا مسئلہ آ گیا تو میں جاؤں دشمنی لینے کے لیے؟ ذمہ دار آپ ہو, ناظم آپ ہو, ہر معاملے میں فیصلے آپ کرتے ہو, بہت بڑے اغوا آپ بن کے بیٹھے ہو, اور کسی کو سبق سکھانا ہو, کسی کے ساتھ دشمنی پالنا ہو تو میں آگے بڑھوں. میں کہا تمہارے ہاتھ سڑ گئے ہیں, لکھو, تمہیں لکھنا پڑے گا, میں نہیں لکھوں گا. تو ایسے تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ حاکم ہیں, آپ خلیفہ ہیں, تو آپ جس طرح سے فیصلے کرتے ہیں, تو اب یہ جو ایک مشکل گھڑی ہے, یعنی ایک بندے پر کیس کیا گیا ہے, دعویٰ کیا گیا, اس کا ثابت بھی نہیں ہو رہا, تو ایسے نازک مسئلے میں مجھے کیوں پھنسا رہے ہو بھائی؟ ایسے نازک مسئلے میں کیوں جاؤں انوالو ہونے کے لیے؟ آپ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو آپ جو ہے حد بھی جاری کر دیجیے, فیصلہ آپ کریں گے اور پھر میں جاؤں اس کو مارنے کے لیے. تو حسن رضی اللہ عنہ جو بہت ان کی جو شخصیت ہے نا, وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے. حسن رضی اللہ عنہ کی بہت پیاری شخصیت. میرا ایک لیکچر ہے حسن رضی اللہ عنہ پر, میرا پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, آپ سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی نرم طبیعت کے مالک تھے وہ, کس طرح سے ان سب معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. تو یہ اس جملے کا مطلب ہے, یہ اشارہ حکومت کی طرف ہے, خلافت کی طرف ہے, ولید کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ اس بندے کا آپ نے مزہ لیا ہے, اس کی حکومت کا آپ جو ہے اس کی تلخی بھی جلیے, نہیں, وہ خلافت کے بارے میں وہ اشارہ ہے. جی
अच्छा क्या बात हो रही थी मैं हमारी? ये एक स्क्रीन पे डाल के ला रहा हूँ ताकि पब्लिक को दिखाई दे एकदम सामने। जस्ट एक मिनट में ला अच्छा रहा हूँ, हाँ, तब तक तो आप इसका कुछ बता तर्जुमा रहे भी उसने किया ना, गलत तर्जुमा किया हैं। इसका तर्जुमा ताकि उसने सब गलत लोगों को दिखाई दे एक सामने सामने कि अरबिक टेक्स्ट के अंदर क्लियर कट जमीर जो है एकदम इब्तिदाई स्टार्टिंग जो पढ़ता है ना स्टूडेंट, उसको हा और हु मालूम होता है कि हा मुअन्नस के लिए, हु मुजक्कर के लिए। वो हा मुअन्नस वाली जमीर हु मुजक्कर एक इंसान के लिए, मर्द के लिए लाकर वैसा तर्जुमा करके अपने एजेंडा को उस हदीस में फिट कर रहे, सही मुस्लिम की हदीस में, जिसके अंदर वैसी कोई बात है नहीं। और ये एक मिसाल है एक ब्लेटेंट मिस ट्रांसलेशन की। हाँ, तो एक सामने सामने, और आपको मैं स्क्रीन पे सामने सामने लाके बता रहा हूं जस्ट एक मिनट में, तब तक कुछ और बात कमेंट है ले लीजिए। अगर इसको सीधे सीधे फिर ये पूरा शियत का ऐलान कर देना चाहिए। कई लोग हैं अपने लोगों के दरमियान, वो तो कहता भी है, वो तो कहता भी हम शियाने अली, फिर बोलता नहीं पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल वो है, हाँ। क्या कहते हैं लगा उसको कहता, वो तो कहता भी है। तो इनको मतलब क्लियर, ये लोग क्लियर अपने आप को ऐलान इसलिए नहीं करते कि जैसे ही ये लोग अपने आप को राफिजी खुला बोल देंगे तैसे ही लोग इनको सुनना बंद कर देंगे। इनको सुनते लोग इसलिए हैं कि इनको अहले सुन्नत का फर्ज समझते हैं, और अहले सुन्नत का फर्ज समझ करके इनको जो है फर्ज समझ के सुनते हैं, फिर गुमराह होते हैं। तो ये अपनी पोजीशन नहीं क्लियर करते हैं। और नक्द करना होता तो मैंने जो मिसाल दी थी वो एक एक करके सब पे करते हैं। जहां ज्यादा इम्कान होता है वहां ज्यादा करते हैं, जहां ज्यादा भड़क जाने का इम्कान होता है वहां कम करते हैं, वहां शोशा शुबा छोड़ के निकल जाते। और जहां ज्यादा मौका मिलता है, कोई जो सिगारे साहबा में से है, जैसे मरवान का जो नाम लेते हैं, अब वो अल्लाह के रसूल की वफात के वक्त गालिबन जो है 8 साल उनकी उम्र रही होगी। तो और कुछ लोग मतलब ये कि इख्तिलाफ भी है थोड़ा सहाबियत में, लेकिन ये है कि नहीं आप थे। तो ऐसे जो सहाबा मिलते हैं जो दीगर सहाबा के मुकाबले मरातिब में छोटे होते हैं, तो उन पर बड़ा अच्छा ये लोग ऐसे जब इनकी बात आती है ना, तो ऐसे लोगों को ये झट से सहाबा में शुमार कर लेते हैं। वो जो हर्रा का बयान करना होगा ना, तो सारे बंदों को सहाबी शुमार कर लेंगे, सबको सहाबा। ये मरवान को सहाबी नहीं मानेंगे। मरवान जो जिसको इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा ना कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के तबके के हैं, ये अब्दुल्ला बिन जुबैर तो सहाबी है ना, उन्हीं के हम तबका मरवान है, और कुछ लोगों ने सहाबा में इनको शुमार भी किया। तो मरवान को सहाबी नहीं मानेंगे ना, मरवान को नहीं मानेंगे, वलीद को सहाबी नहीं मानेंगे। और जब इनके बात मन की बात आ जाएगी, इनका जो दंगा फसाद रहेगा उसमें कोई शरीक रहेगा, तो सब सहाबी बन जाएंगे, सबको सहाबी बना डालेंगे। हुजैर बिन अदी को भी तो बना दिया ना, फिर सबको बना डालेंगे। मैं सामने ले आया मोहम्मद बिन अबी बकर को, मोहम्मद बिन बकर वो भी सहाबी नहीं है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने अरे मोहम्मद बिन अबी बकर के बारे में मैंने लिख दिया था एक बार कि सहाबी नहीं है, तो एक बंदा तो बोला सहाबा का गुस्ताख, इसने मोहम्मद बिन अबी बकर की सहाबियत का इनकार किया। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने बहुत बेहतरीन अंदाज से, मेरे फेसबुक पेज पे वो आर्टिकल होगा, बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है मोहम्मद बिन अबी बकर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये बंदा सहाबी नहीं है, ये सहाबी। और वो जिसको कत्ल किया था, वो क्या नाम है, जिसको कत्ल किया था हजरत मुआविया ने कत्ल करवाया था, जो खुतबे में क्या वो भी सहाबी नहीं है। नहीं हाँ, नहीं, वो भी सहाबी नहीं, पर उसको रजी अल्लाह ताला अन्हु अफजल तरीन सहाबी उसको करार देने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर तो ना सिर्फ एक सहाबी नहीं थे, बल्कि ये भी है कि वो कोई ऐसी फजीलत भी नहीं रखते थे, यानी ऐसी कोई फजीलत और ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई शर्फ और मर्तबा भी उनके पास नहीं था। एक आम मतलब आम ताबई के तौर पे उनका नाम लिया जाता है। अच्छा, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने ये भी लिखा है कि ये मोहम्मद बिन अबी बकर, ये जैसे लोग जो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जो लोग भी शरीक थे, ये लोग उनके फजाइल बयान करते हैं बढ़ा चढ़ा के, उनको बहुत बड़ा हीरो बताते हैं। ये अली मिर्जा भी मोहम्मद बिन अबी बकर को हीरो बना के पेश करेगा, मालिक अस्तर जैसे दहशतगर्द को हीरो बना के, आतंकी को हीरो बना के पेश करेगा। तो जितने ये बलवाई लोग हैं, जितने फसादी लोग हैं, इनको पूरा हीरो बना के पेश करेगा। अच्छा, मिर्जा अली इंजीनियर हीरो बनाते हैं तो समझ में आता है, शिया हजरत हजरत अबू बकर को गालियां देते हैं, हजरत अबू बकर को मुर्तद बोलते हैं, और मोहम्मद बिन अबी बकर को अल्लाह ताला का वली बना देते हैं। मतलब हजरत अबू बकर को गाली देते हैं, और मोहम्मद बिन बकर से क्योंकि साबित है कि वो हजरत उस्मान के मुखालिफिन में बहरहाल थे, घर से उन्होंने कत्ल नहीं किया, वापस आ गए थे, तो इनके अब्बा को गालियां देते हैं, मुर्तद बोलते हैं, और मोहम्मद इब्ने अबी बकर को अल्लाह ताला का बहुत बड़ा वली बना देते हैं क्योंकि वो हजरत अली के साथ में थे। अरे भाई, वो इब्ने ज़ियाद का जो मसला ना पिछली में आया था, किसी ने पूछा कि इब्ने ज़ियाद के बारे में बार बार कोई सवाल कर रहा था, तो हमने कहा भाई इब्ने ज़ियाद कितना बड़ा जालिम हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर उसका किसी कत्ल में हाथ नहीं है तो हम कैसे बोलते हैं उसने कत्ल किया है? अरे फिरौन का भी किसी कत्ल में हाथ नहीं होगा तो इतना बड़ा जालिम, तो क्या फिरौन को बोल देंगे सबका कातिल है?
जिसको नहीं मारा है उसको तो नहीं कहेंगे ना उसने मारा है, जिसको मारा मारा कातिल है, लेकिन जिसको फिरौन ने नहीं कत्ल किया हम उसको फिरौन को उसका कातिल थोड़ी बना देंगे। तो इब्ने ज़ियाद कितना भी बुरा हो, तो अगर सिर्फ इतना बोल दो ना कि फला कत्ल में इब्ने ज़ियाद का हाथ नहीं, बोलेगा ये इब्ने ज़ियाद का दिफा करने वाला हो गया। अब एक गधे मालिक अलअश्तर का दिफा करता, शर्म नहीं आती? मालिक, ये इब्ने ज़ियाद मालिक जो अश्तर है ना, वो इब्ने ज़ियाद से दर्जनों गुना ज्यादा आतंकी है। इब्ने ज़ियाद फासिक फाजिर कैसा भी हो, लेकिन मालिक अल-अश्तर से लाख दर्जा बेहतर है। मालिक अश्तर जैसे आतंकी से, दहशतगर्द से तो लाख दर्जे बेहतर है। मैं इसको नहीं कहता हूँ कि इब्ने ज़ियाद जालिम फासिक नहीं था, ये भी जालिम है, ये भी फासिक है, बिला वजह इसने भी कुछ लोगों को मारा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसका जुर्म मालिक अल-अश्तर से बड़ा नहीं है। मालिक अश्तर ने उस्मान रज़ी को खलीफे वक्त को शहीद करवाया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जन्नती का उनको शहीद करवाया है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जिनके बारे में कहा कि अल्लाह के नबी वफात को इनसे राजी थे, उनको शहीद करवाया। इतना बड़ा आतंकी उसको हीरो बनाते हैं। और इब्ने ज़ियाद के बारे में किसी ने कहा अरे ये इब्ने ज़ियाद की दफा करते हैं, अरे तुम मालिक अल-अश्तर जैसे कुत्ते का दफा करते हो। कुत्ता मैं नहीं बोल रहा हूँ, सफिया उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिसको कुत्ता कहा है, सहाबा ने जिसको कुत्ता कहा है, सहाबा ने जिसको बद्दुआ दी है, उम्महातुल मोमिनीन जिसको बद्दुआ दी है, उसे अपने सर पे बिठाते हो। और इब्ने ज़ियाद के बारे में किसी ने कह दिया कि फला कत्ल में इसका हाथ नहीं है, कहते नहीं ये इब्ने ज़ियाद इसका दफा करने वाला, शर्म आनी चाहिए तुमको। अच्छा, यहाँ पर ये स्क्रीन पर आ चुकी है, ये मैं फुल स्क्रीन पर ले रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से खयानत है। हदीस सही मुस्लिम की है, सही मुस्लिम की हदीस है, हवाला आपके सामने 1707A। लेकिन आप देख रहे हैं अरबिक टेक्स्ट, इंग्लिश में तर्जुमा टॉप पे देख सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ इन्होंने क्या तर्जुमा किया। शेख सरफराज आप फिर एक बार बता दीजिए जी। ये जो वल्ली हा रहा मन तवल्ला का रहा, जो इन्होंने कहा ना, इसमें हा रहा की जमीन असल में खिलाफत की तरफ लौट रही है। तो मतलब ये है कि जिसने इस खिलाफत का मजा लिया है वो जो है वो इसकी तलखी भी बर्दाश्त करे, यानी खिलाफत के जो फवायद है वो आ रहे हैं। तो ऐसे अगर मुझे, क्योंकि बहुत तल्ख फैसला था ना, एक आदमी पर जुर्म साबित नहीं हो रहा है, जो लोग 2 लोग गवाह देने के लिए आए हैं उनमें से किसी ने भी उनको शराब पीते हुए नहीं देखा है। बस एक आदमी ये कह रहा है कि इन्होंने फजर की नमाज 2 की जगह 4 रकात पढ़ा दी। एक आदमी ने कहा कि मैंने उल्टी करते हुए देखा है। किसी ने भी उनको शराब पीते हुए नहीं देखा, किसी के पास सबूत नहीं शराब पीने का। तो ऐसे आदमी पर कोड़े लगाना एक बुरा फैसला था, मुश्किल फैसला था, कड़वा फैसला था। हज़रत हसन ने कहा कि हम कोड़ा नहीं लगाएंगे, मतलब आप इसके फायदे उठाते हैं खिलाफत के, तो ये कड़वा फैसला भी आप करें। तो वल्ली हा रहा यानी इस खिलाफत के तलखी को भी वही बर्दाश्त करे जो इसकी मतलब उसकी मिठास को बर्दाश्त करता है। और अब तो इसमें हा रहा में हा की ज़मीर है जो खिलाफत की तरफ लौट रही है। और इन्होंने कह दिया इस शख्स का मजा, इब्तिदार बीच में लिख दिया इस शख्स का मजा। तो शख्स तो मुजक्कर है, तो अगर शख्स मुराद होता तो यहाँ पे हार रहा के बजाय हार रूह होना चाहिए था, क्योंकि हु की जमीर मुजक्कर है, तो अगर वो किसी शख्स की तरफ लौट रही है तो वो हार रूह होना चाहिए था। पर इसने ना खयानत करते हुए ये बताने के लिए कि हजरत वलीद बिन उक़बा जो है वो हजरत उस्मान के बहुत चहेते थे, और नौज बिल्ला की कोई हजरत उस्मान उसके कोई फायदा उठा रहे थे, उसका मजा ले रहे थे, इसलिए उसको जो है इसको कोड़ा लगाना है फैसला जो है ना हजरत उस्मान के लिए कोई तल्ख फैसला था। तो ये इसने खयानत की। हार रूह अगर होता तो इसका ये तर्जमा सही होता, लेकिन यहाँ पे हार रहा है और हा की जमीन जो है वो खिलाफत की तरफ लौट रही है, तो खिलाफत या बादशाह जो है ना ये मुअन्नस कसेगा, इसलिए हार रहा उन्होंने कहा है। ऊपर इंग्लिश में ज़ैद भाई कहाँ पर ट्रांसलेशन है, लेट सफर द हीट, लेट हिम सफर द हीट ऑफ, देखिए इन्होंने भी तर्जमे में वही लिखा है खिलाफत की, हीट ऑफ खिलाफा यानी जो उसकी गर्मी है उसको वही बर्दाश्त करे, हु हैज एंजॉयड इट्स कोल्डनेस। है वो सही तर्जमा इंग्लिश में? हाँ सही तर्जमा है, उसने भी खिलाफत, जो इंग्लिश में भी तर्जमा जिन्होंने क्या उन्होंने भी खिलाफत ही लिखा है, और वो सबने ही खिलाफत ही माना उसका लिया, किसी ने भी। हाँ यानी इंग्लिश में खिलाफत है, और देखिए और ये इन्होंने जो तर्जमा किया है दिस मैन से किया है,